Students, this is Gyan Dixit. Now we are starting exercise 2.4. So here first question is determine which of the following polynomials has x plus 1 as a factor. So here in this question we have to check x plus 1 is a factor or not. So here in this first part is polynomial is given px equals to x cube plus x square plus x plus 1, and here the divisor gx is given for all which is x plus 1. So here solution, here gx को हमें क्या पुट करना है, x plus 1 is given. Now we have to put it equal to 0. For finding zeros, x plus 1 equal to 0. So x equal to minus 1. Now this minus 1 we have to put in all polynomials. So here we are finding remainder. Remainder इसे कहते हैं, that is p minus 1. अगर ये 0 आ गया that means it is the factor, otherwise no. So in the place of x put minus 1. So here x cube, that means we have minus 1 whole cube plus x square. So it is in the place of x put minus 1 square plus x, in the place of x put minus 1 and plus 1. Minus 1 cube is minus 1 plus minus 1 square is plus 1 and plus minus is minus 1 and plus 1. See, these are cancelled and these are also cancelled, so we will get 0 here. Now if p minus 1 is 0, therefore x plus 1 is a factor of px. Clear? First part is done. Now for second part, polynomial is given px, polynomial is given x to the power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1. Now again we have to put in the place of x minus 1. So here minus 1 to the power 4 plus minus 1 to the power 3 plus minus 1 square plus x की जगह minus 1 and plus 1. Minus 1 की power 4, so it is plus 1. Minus 1 का cube is minus 1. Minus 1 square is plus 1 and it is plus minus minus 1 and plus 1. These are cancelled. These are also cancelled. So we have 1 which is not equal to 0. Therefore x plus 1 is not the factor, is not the factor of px. क्लियर? px का ये x plus 1 यहाँ पे फैक्टर नहीं है सेकेंड पार्ट में. नाउ स्टार्ट थर्ड पार्ट which is x to the power 4. Here polynomial is given x to the power 4 plus 3x cube plus 3x square and plus x plus 1. Again we have to put minus 1 in the place of x, so it is minus 1 to the power 4 plus 3 minus 1 cube plus 3 minus 1 square and plus x, that is minus 1 and plus 1. Now open bracket, minus 1 to the power 4, that is plus 1, 3 into plus 3 into minus 1 cube is minus 1, so it will be minus 3. Now here plus 3 minus 1 square is plus 1 plus minus, so it is minus 1 and plus 1. Now these are cancelled, cancel out them. So it is 1 plus minus minus, so it is minus 3 and it is plus 3. So these are also cancelled, that means we get 1 which is not equals to 0. Therefore again x plus 1 is not the factor of px, is not the factor of px. Clear? Here also it is not the factor. Now move to next part which is fourth, and here polynomial is given px is given x cube minus x square minus in bracket 2 plus root 2 into x and plus root 2. Clear? Now again we have to put minus 1 in the place of x, so it is p minus 1. For this whole question gx is same gx plus 1, so it is 0. Now x equal to minus 1. So minus 1 cube minus x, that is minus 1 square minus 2 plus root 2, and here in the place of x it is minus 1 and plus root 2. Clear? Now minus 1 cube, that is minus 1. Clear? Minus 1 square is plus 1. Now minus 2 plus root 2, and here it is minus. Clear? So into minus 1, same I am writing here, and plus root 2. Now this is minus 1, this is also minus 1. Now see here, this is minus, so it will be plus sign. Now here it is left 2 plus root 2 and plus root 2.
Now minus 1 and minus 1 is minus 2. Now open the bracket, so plus 2 plus root 2 and plus root 2. This minus 2 and minus 2 is plus 2 is cancelled. Now root 2 and plus root 2, so it will be 2 root 2. Now which is also not equal to 0. That means again x plus 1 is not the factor of px. Is not the factor of px. Factor of px. Clear? In this question also it is not the factor. Now for the second question. In this question, use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases. Again same question hai, px and gx are given different. So here in first part I am solving. Px is given 2x cube plus x square minus 2x and minus 1, and gx is given, that is x plus 1. Now for this, firstly we have to put gx equal to 0, gx equal to x plus 1, which is equals to 0. That means x will be minus 1. Now this value of x minus 1 putting px. So we have p minus 1. In the place of x put minus 1. So it is 2x cube. So 2 minus 1 cube plus x square. So minus 1 square minus 2x. So x की जगह minus 1 and minus 1. So 2 minus 1 cube is minus 1 plus minus 1 square is plus 1 minus 2 and minus 1 and minus 1. Now open the bracket, 2 into minus 1, that is minus 2 plus 1 minus 2 and minus 1, so it is plus 2, and here it is minus 1. This minus 1 cancel to plus 1 and 2 cancel to minus 2, so it will be 0. That means here gx is the factor of px. Clear? Clear now? Now remaining two parts are left, which you have to solve in homework. Okay, remaining two parts solve करिएगा बेटा. Now here we are solving third question. Now in third question, find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following. Here x minus 1 is given, gx is given x minus 1, so we have to put it is gx. So x minus 1, now we put it equal to 0, that means we will get x equal to 1. Now the value of x is 1. Now in first part px is given x square plus x plus k, x square plus x plus k. Now we have to put in the place of x 1. So p1, which is equal to, but here it is given the factor na, so p1 equals to 0. Since here we have to write x plus 1 is the factor of px, it is given here. So if it is factor, that means p1 equals to 0, p equal to 0 na, factor theorem. So p1 equal to 0. Now put the value of x 1 in the given polynomial. So x square, that means it will be 1 square plus x, that means plus 1, and plus k equal to 0. 1 square is 1 plus 1 plus k equal to 0. Now it is 2 plus k equal to 0. Now separate k, which is equals to minus 2. K की value क्या आ गई minus 2. Now move to next part, second part, which is px equals to 2x square plus kx plus root 2. Again, since x plus 1 is the factor of px, px का factor दिया हुआ है x plus 1, that means p minus x minus 1 is given now, not plus, it is given minus sign, x minus 1, that means we have to put x plus 1. So here x equal to plus 1, because here we got plus 1. So p1 equal to 0. Now put 1 in the place of x, so it will be 2x square, that means 2 1 square plus k into x, so it is 1, and plus root 2 equals to 0. Now here we will get 2 plus k and plus root 2 equals to 0. Now separate k, that means 2 goes to here minus, and root 2 is also going to minus. Now we can take minus common, which is 2 plus root 2. So k equal to minus bracket 2 plus root 2. Or also we can write here till here only, so it is also correct. Now move to next part, third part. Here px is given kx square minus root 2x and plus 1. Again we have to put, since x minus 1
is the factor of px. If x minus 1 is factor, then remainder p1 equals to 0. Now put 1 in the place of x. So k into 1 square minus root 2 into 1 plus 1 equals to 0. So k minus root 2 and plus k. It is also k. No, it is 1, not k. It is given here 1. So k minus root 2 plus 1 equals to 0. Now we separate k. So root 2 goes to here, so it is plus sign, and 1 goes to, so it is minus 1. So k equal to root 2 minus 1. Now remaining fourth part, do yourself. Okay. Now we will start fourth question. Fourth question is factorize the following by any method. It is not given any which method we have to use. So your first part is 12x square minus 7x plus 1. So we are using here splitting the middle term को split करना है. So here first term is 12 and last term is 1. So multiply firstly 12 into 1 which is equals to 12. Now factorize 12 for which on addition we have to get 7. 12 के ऐसे फैक्टर की प्लस करने पे कितना है 7. तो 12 के अगर हम फैक्टर करें मीन्स 12 के अगर हम फैक्टर करें 2 6 जा 12 2 3 जा 3 1 जा मीन्स 12 के फैक्टर्स आपको मिल गए 2 इंटू 2 इंटू 3. अब इसमें ऐसे दो पेयर बना लीजिए इनको प्लस करने पे 7 आए. देखो 2 अगर हम सिंगल लें 2 इंटू 3 6 6 और 2 8 नहीं आया 7. 2 और 2 कंबाइंड ले लें 4 और 3 4 प्लस 3 कितना हो गया 7. तो हमें 4 इंटू 3 लेना है मीन्स हमने फैक्टर क्या लिए 4 इंटू 3 एंड 4 प्लस 3 इक्वल टू 7. क्लियर. So here in the place of 7 we have to put 4 plus 3. So it is 12x square minus in the place of 7 put 4 plus 3. Here x plus 1. Now 12x square minus open the bracket 4 into x. So it is 4x minus plus minus 3 into x and plus 1. So at this step firstly check the middle term is same or not. Here it is minus 4x and it is minus 3x. Both are added. So 4 and 3 7. So it is minus 7x. Here also it is minus 7x. इसको एक बार चेक कर लीजिएगा. ठीक है. Now can we take common 12x square and 4x. So what is common here 4 and x. So 4x we are taking common. 4 3 are 12 and x minus 4x whole is common. So nothing is left 1. Minus common 1. So it is 3x plus and it is plus minus common. So it is minus 1. 3x minus 1 is whole bracket is common. Now what is left here 4x and it is minus 1. So 4x minus 1. Clear. This is the first part. Now second part which is 2x square plus 7x plus 3. Clear. So 2 3 are 6 6 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पे 7 आए. तो 6 into 1 is 6 6 plus 1 is 7. So 2x square plus 6 plus 1 x plus 3. Open the bracket 2x square 6 into x so plus 6x plus 1 into x so 1x and plus 3. Here 2 is common and x is common. So here left x and 2 3 are 6 3 plus nothing is common 1 we are taking common so x plus 3. Bracket is common x plus 3 this bracket is common so we are taking common. What is left 2x and here plus 1 so it is 2x plus 1. Third part also we are doing. Fourth part you have to do in yourself. Okay, homework. So third part is 6x square plus 5x minus 6. 6 6 या 36 36 के फैक्टर माइनस करने पे 5 आए. तो 36 के फैक्टर 4 9 या 36 6 या 36 12 3 या 36 ना. सो 9 4 या 36 9 minus 4 is 5. So we get 6x square plus in the place of 5 put 9 minus 4. X is outside minus 6. Now open the bracket. So plus 9 into x so it is plus 9x plus minus minus 4 into x so it is minus 4x and minus 6. को चेक करेंगे तो 9 में से 4 गया 5. यहाँ भी चेक करते तो 6x plus 1x that is 7x. Now 6x square and 9x x तो कॉमन है ही 6 और 9 में क्या कॉमन है 3. So 3x is common 3 2 जा 6 and x is left plus 3 3 जा 9 x is common so nothing is left minus 4 और 6 में कॉमन क्या है 2 so 2 कॉमन x is not here common so 2 2 जा 4 2x माइनस यहाँ कॉमन आ गया माइनस था माइनस कॉमन से यहाँ क्या बचेगा प्लस 2 3 जा 6. Now this bracket is common 2x plus 3 take common 3x and minus 2 are left so 3x minus 2. Fourth part do yourself. Okay, now we are starting fifth question. Fifth question is factorize the following. Now there are 4 parts. Okay, so first part start now. First part is polynomial is given, we are assuming it px.
विच इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। देखिए यहाँ पे स्प्लिटिंग भी काम कर सकता है और आप फैक्टर थ्योरम करोगे तो भी ठीक है। स्प्लिटिंग चेक कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एक्स क्यूब, क्योंकि 4 टर्म्स है ना, क्यूब है यहाँ पे, तो डायरेक्ट तो ये मेथड नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पे लग जाएगा। कैसे? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लग जाएगा, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ x² अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ x और यहाँ -2 और यहाँ भी x और 2 है ना, तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर लेंगे। x² कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, x और -2, माइनस कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 कॉमन ले लिया, x और यहाँ प्लस था माइनस कॉमन तो -2, ब्रैकेट कॉमन आ गई तो x -2 और यहाँ दूसरा x² और क्या बचा -1। नाउ x -2 x² और -1 को हमने लिख दिया 1²। नाउ देर इज़ वन आइडेंटिटी a² माइनस b², so we can break it a plus b and a minus b, so x -2 and here x plus 1 and x -1। clear? this is the question। clear? कैसे पहचानना है, हमें मेथड लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन टर्म सेम होंगी, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 2 सेम आ रहा है ना। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है, देखिए मैं यहाँ फोर्थ पार्ट अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ 2y³ प्लस y² 2y -1, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 1 सेम है ना, अगर हम कॉमन लेंगे तो ये दोनों सेम आ जाएंगे, इसलिए इसको हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, जैसे x³ 3x² है, 1 और 3 है, या 9 और 5 कॉमन नहीं आएगा, 13 23 20 तो यहाँ कुछ कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट हमें अलग मेथड करना है और इसमें अलग करना है। तो फोर्थ पार्ट मैं इसके साथ ही करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलो लास्ट में ही करेंगे, अभी सेकंड पार्ट ही करते हैं। ओके, तो फर्स्ट और फोर्थ सेम है और सेकंड और थर्ड सेम है। तो सेकंड पार्ट है आपका px पॉलिनोमियल इज गिवन विच इज़ इक्वल्स टू x³ माइनस 3x² माइनस 9x एंड -5 इट इज़ गिवन। सी हियर, अगर हम x² कॉमन लेंगे तो x -3 बचेगा, बट यहाँ पे ब्रैकेट सेम नहीं मिल रही है, इसलिए मेथड नहीं लग सकता स्प्लिटिंग। तो अब हमें यहाँ पे क्या लगाना है कि फैक्टर थ्योरम लगानी है, मीन्स ऐसी एक वैल्यू पुट करनी है जिससे कि इसकी वैल्यू px की वैल्यू 0 आ जाए, जिससे कि हमें एक फैक्टर मिल जाए। फॉर दिस द कांस्टेंट टर्म इज़ 5, तो जितना कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टर्म आपकी क्या है 5, तो 5 के अगर हम फैक्टर्स ले लें तो क्या हो सकते हैं, +-1 और +-5, ये हो सकते हैं। 1 5 जो 5, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा। 5 के ही 2 फैक्टर हो सकते हैं, यानी कि 4 वैल्यू हमें मिलेंगी, +1 -1 +5 और -5। इन चारों में से कोई भी एक वैल्यू रख के 0 मिलना चाहिए हमें ना, तो हमें वो चेक ही करना पड़ेगा। केवल हिट एंड ट्रायल मेथड है, कोई डायरेक्ट हम इसमें नहीं लगा सकते कि ये आएगा ही आएगा 0। ठीक है, तो हम पहले +1 इसमें पुट कर रहे हैं, तो x की जगह हमने पुट किया +1 p1, तो x की जगह 1 रखा, सो 1³ -3 × 1² -9 × 1 एंड -5। सॉल्व करिए, 1 -3 -9 एंड -5। क्लियर है? अगर हमने यहाँ पे -1 -3 जरा देखिए, प्लस करिए तो 1, ये तीनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, 3 और 9 12 5 17, तो माइनस का 17 मेरी -16 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन्स हमें ये फैक्टर नहीं मिला, तो x -1 इज़ नॉट द फैक्टर। अब हमें कोई और वैल्यू रखनी है तो हम -1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो p -1, यहाँ पे ये केवल हिट एंड ट्रायल मेथड है, कोई और डायरेक्ट हम नहीं बता सकते कौन सा आएगा, केवल इससे जो कांस्टेंट है उससे ये पता कर सकते हैं हम कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं। 5 के फैक्टर्स 1 और 5 होते हैं, तो +1 -1 +5 -5 में से चारों में से तो होगा एक। -1 पुट किया तो -1 का क्यूब -3x² मीन्स -1 का स्क्वायर -9x और -5। सॉल्व कर दीजिए, -1 का क्यूब तो -1 -3 -1 का स्क्वायर +1 -9 और -1 का मल्टीप्लाई तो +9 और यहाँ -5। -1 और 5 कितना हुआ, और ये 3 1 3 भी है, चलो लिख लो एक बार और, -3, तो -5 को मैंने पहले लिख लिया और 9 को लास्ट में। 1 3 4 और 5 9, तो ये -9 और ये +9 मीन्स ये कितना आ गया 0। अब p -1 अगर 0 है दैट मीन्स x + 1 इज़ द फैक्टर ना, साइन चेंज होता है, क्योंकि pa = 0 दैट मीन्स x - इज़ द फैक्टर। जो आपकी फैक्टर थ्योरम थी क्या थी, इफ़ फैक्टर थ्योरम थी इफ़ pa = 0 देन x - a इज़ द फैक्टर, ये था फैक्टर ऑफ px। कौन सी थ्योरम थी ये, फैक्टर थ्योरम। क्लियर है? तो यहाँ पे पी एक्स की ए की जगह कितना -1, तो उसको माइनस और यहाँ पे आएगा एक ना, x - a होता है तो माइनस माइनस प्लस, देयरफॉर x + 1 इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ px
अब अगर एक फैक्टर हमें मिल गया तो अगर उससे हम डिवाइड करें तो वो भी दूसरा फैक्टर होगा। तो ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई एक्स माइनस वन, अब हमें क्या करना है, एक्स माइनस वन था प्लस वन था बेटा, तो एक्स प्लस वन इससे हमें डिवाइड करना है। तो एक्स प्लस वन से हम इसे डिवाइड करेंगे, तो एक्स प्लस वन, ये डिवीज़न हमें शो करना है, किसको डिवाइड करना है, पी एक्स इज़ एक्स क्यूब, पी एक्स इज़ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, x से डिवाइड किसको करना है, एक्स क्यूब को, देखो इसे समझ लो आप। ठीक है, जब हम x से एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स, डिवाइड में पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट, तो 3 में से बन गया 2, मीन्स x की पावर क्या हो गई 2, मीन्स हमें टेबल क्या मिल गई एक्स स्क्वायर। क्लियर है ये रफ वर्क के साइड से। तो एक्स स्क्वायर से अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है जब भी आप डिवाइड करते हो। फॉर एग्जांपल अगर 2 से अगर हमें डिवाइड करना है 11 को, तो 2 से इसको डिवाइड किया 2 5, अभी 5 आ गया, अभी ने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, तभी ना 1 बचा। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो सेम यहाँ पे हमें एक्स प्लस वन का मल्टीप्लाई किससे करना है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 1 एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखना। ठीक है, क्या एक्स क्यूब है एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसके नीचे नहीं लिखना। यहाँ साइन चेंज होगा तो माइनस, यहाँ भी साइन चेंज हुआ तो माइनस, ये कैंसिल हो गए, माइनस 3x स्क्वायर और ये माइनस 1x स्क्वायर ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस 9x हमने नोट कर लिया। अब x से डिवाइड किसको करना है, माइनस 4x स्क्वायर को, माइनस 4x स्क्वायर को डिवाइड किससे करना है, x से। जब x से डिवाइड करेंगे एक x कैंसिल हो जाएगा, मीन्स माइनस का 4x, तो यहाँ टेबल आ गई माइनस 4x। अब इस 4x का मल्टीप्लाई हमें इन दोनों से करना है ना, तो 4x का मल्टीप्लाई यानी कि हमें माइनस 4x को मल्टीप्लाई किससे करना है, x प्लस वन से। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस 4x का मल्टीप्लाई जब x से होगा तो माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x का 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस 4x, तो हमें मिल गया माइनस 4x स्क्वायर एंड माइनस 4x, इट इज़ स्क्वायर। नाउ चेंज द साइन, इट इज़ प्लस, these are cancelled, minus 9x and it is plus 4x, so it is minus 5x. next term is minus 5, note down it. now minus 5x को डिवाइड किससे करना है, माइनस 5x को डिवाइड किससे करना है, x से, तो x कैंसिल मीन्स माइनस 5, तो यहाँ टेबल पड़ गई आपकी माइनस 5। अब इस माइनस 5 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो सिंपली है माइनस 5 का x से मल्टीप्लाई तो माइनस 5x प्लस 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस 5, चेंज द साइन, प्लस ये भी प्लस, दोनों कैंसिल हो गए, मीन्स रिमाइंडर 0 आ गया, डिवाइड कंप्लीट हो गई। दैट मीन्स जो हमें मिला, अब हमें क्या मिल गया, देयरफॉर पी एक्स इक्वल टू, क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 0 है, मीन्स पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स, तो जी एक्स कितना है, एक्स प्लस 1 और क्यू एक्स क्वोशेंट कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 5। क्लियर। अब हम इस टर्म को अलग से फैक्टराइज कर लें, चाहो तो साथ में भी कर सकते हो लिख के। ठीक है, तो अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x या साथ में कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस, अब जरा देखो 5 है यहाँ 1 है, तो 5 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पे 4 आए, तो 5 बन जाए 5 में से बन गया 4, तो हमने 4 को लिख लिया 5 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5, तो एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस 5 इंटू एक्स एंड माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स और माइनस 5। अब कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 1 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर और 5x में कॉमन क्या है x, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 5 प्लस नथिंग इज कॉमन, 1 वी आर टेकिंग, सो इट इज़ x माइनस 5। नाउ ब्रैकेट्स आर सेम, सो x प्लस 1 x माइनस 5 ब्रैकेट कॉमन आ गई तो क्या बचा x और 1, तो x प्लस 1, दिस इज योर आंसर। क्लियर। तो इस टाइप को आपको यूज़ करना है। इस मेथड से आप फर्स्ट पार्ट को भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल था, हमने इसको इसी मेथड से रखा। ठीक है, आप इस मेथड से भी कर सकते हो। ओके, नाउ थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट में आपको पी एक्स गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। क्लियर। अब हमें यहाँ पे फैक्टर करना है, सेम मेथड। देखो जो प्लस 1 हमने यहाँ पे रखा था ना, प्लस 1 को अगर हम ना रखें डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो वो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि 1 का क्यूब स्क्वायर जो भी करोगे आंसर 1 ही आएगा। इट मीन्स जो कोफिशिएंट उनको डायरेक्ट हम सॉल्व करना है। जैसे 1 यहाँ किसका था, प्लस का, माइनस का 3 माइनस 9 माइनस 5। देखो यहाँ सॉल्व किया था तो हमें ये तो मिला था, प्लस 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5।
तो 0 कहीं से नहीं आ रहा था, मीन्स +1 हमें डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। माइनस में रख के देखेंगे, देखो +1 रखने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि सारे प्लस के हैं ना, तो प्लस पे तो आएगा ही नहीं 0, ठीक है। तो हम यहाँ -1 रखते हैं, तो p-1 पुट करते हैं, ठीक है। अब जब -1 रखा तो -1 का क्यूब प्लस 13x² मीन्स -1² प्लस 32x मीन्स -1 और प्लस 20। सॉल्व कर लो इसे, -1 का क्यूब तो -1 प्लस 13 -1 का स्क्वायर +1 प्लस 32 इंटू -1 सो इट इज़ -32 एंड प्लस 20। क्लियर। अब -1 माइनस और प्लस 13 प्लस, अच्छा माइनस है पहले, चलो +20 पहले लिख लिया, माइनस का 32 लास्ट में कर दिया। तो -1 और -32 ऐड हो जाएंगे, -33 प्लस के दोनों ऐड हो गए, 13 और 20 33 कैंसिल हो जाएंगे, मीन्स 0। अब हमें पे p-1 0 मिल गया, दैट मीन्स अगेन x+1 इज़ द फैक्टर। सेम क्वेश्चन था, सेकंड की तरह ही हो गया ये। देयरफॉर x+1 इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ px, ठीक है। देन ऑन डिवाइडिंग px बाय x+1, x+1 से px को डिवाइड कर रहे हैं, तो x+1 से हमें डिवाइड करना है किसको, px को। px क्या है आपका, x³ प्लस 13x² प्लस 32x और प्लस 20। क्लियर, डिवाइड किया। x³ को जब आप x से डिवाइड करोगे तो टेबल क्या पड़ेगी, x²। क्लियर, पर आप देख ही चुके हो यहाँ पे भी x³ को डिवाइड किया था तो x² टेबल पड़ेगी, तो यहाँ भी टेबल क्या पड़ गई, x²। x² का मल्टीप्लाई x से होगा तो x³, x² का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो प्लस 1x²। चेंज द साइन, माइनस, इट इज़ ऑल्सो माइनस, दीज आर कैंसल्ड। प्लस 13x² माइनस 1x² सो इट इज़ 12x² प्लस 32x नोट डाउन। नाउ x से डिवाइड किया तो एक पावर कम हो गई, मीन्स 12x सो इट इज़ प्लस 12x। मल्टीप्लाई किया x से सो इट इज़ 12x² प्लस 12x इंटू 1 सो इट इज़ 12x। चेंज द साइन, कैंसिल, 32 माइनस 12 दैट इज़ 20x प्लस 20 नोट डाउन हियर, डिवाइड x सो इट इज़ 20 ओनली, सो प्लस 20 मल्टीप्लाई करेंगे 20x प्लस 20, साइन चेंज। नाउ दीज आर कैंसिल्ड, दैट मीन्स रिमाइंडर इज 0। अगेन डिवीजन एल्गोरिथम अगर हम लगाएं तो px इक्वल टू gx इंटू qx, दैट मीन्स वी विल गेट px इक्वल टू, सो देयरफॉर px इक्वल टू, डिवाइजर क्या था आपका x+1 और क्वोशिएंट आपका क्या था x² प्लस 12x प्लस 20, x² प्लस 12x प्लस 20। क्लियर, ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम लग गई। नाउ हियर x+1 इज एज इट इज। नाउ 20 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पे 12 आए, तो 10 2 20, 10 प्लस 2, सो x² प्लस 12 की जगह हमने ब्रेक कर लिया 10 प्लस 2, x आउटसाइड प्लस 20। क्लियर, नाउ x+1 is as it is. Now here x² open the bracket plus 10 into x so it is plus 10x plus 2 into x so it is plus 2x plus 2x कहाँ लिखा, plus 2x and plus 20 as it is. Now take common, x+1 is as it is. Now here x² and 10x, so what is common here, x common, so what is left, x plus 10, plus 2 is common, so here left x plus 10. Now bracket is common, so x plus 10 in whole, x plus 10 is common, so x plus 10. Now here what is left, x, and here it is 2, so x plus 2. This is your answer. Last part, fourth part also, 2y cube plus y square minus 2y and minus 1, इसको py हमने मान लिया, py इक्वल्स टू 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 1। क्वेश्चन में क्योंकि कोई मेथड नहीं कहा हुआ, अगर क्वेश्चन में इसमें भी लिखा है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम तो आप सेकंड और थर्ड वाले मेथड से ही करेंगे, ठीक है। बट अगर नहीं लिखा है तो आप सिंपल इसको स्प्लिटिंग या मिडिल टर्म कर सकते हैं। तो स्प्लिटिंग से देखिए पहले क्या कॉमन है, वाई क्यूब वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा 2y प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, माइनस दोनों में कॉमन है तो माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2y प्लस 1, ब्रैकेट दोनों में कॉमन है तो 2y प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा वाई स्क्वायर और माइनस 1। क्लियर, सो 2y प्लस 1
वाई स्क्वायर माइनस वन, तो वाई स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, अगेन यूज आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, so 2y plus 1 and it is here y plus 1 and y minus 1. This is your exercise 2.4 completed.